Hello students, good morning. I am your science teacher from Shri Ram Academy High School, Satna, and I have come to do to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular lesson, in particular lecture, we will be starting the subject science for class 9th. In this is a lecture in the continuation of the previous lecture series that was on the chapter 1 matter in our surroundings. Okay, so students, previously we discussed what are the characteristics and what is the physical nature of matter and what is matter. In this particular lecture we will be studying the states of matter, different states of matter. Okay, if you look around yourself, you will be finding many different things which have different characteristics and different states. Such as, if you look around yourself, you will find table, pen, chair, book, etc., etc. Okay. Similarly, you will be finding some things like water, tea, milk. Okay. You will also find in some cases you are all over surrounded by air. Okay, when the fan is blowing you can feel the blow of the air. Okay, so in this way we can see that there are different states of matter. Some have different natures and characteristics. So there are three different states of matter, such as solid, liquid and gas. Okay, this thing was established by the scientists during their research, and after this variation comes because there is a variation in the characteristics of the particles of matter. सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के एग्जांपल्स में जैसे मैंने कहा कि चेयर, पेन, टेबल, ये सब क्या है आपका सॉलिड्स का एग्जांपल है. लिक्विड के एग्जांपल्स में मैंने आपको दिया था मिल्क, टी, वाटर. These are the liquids. Okay, the gas is the air around yourself is gas. The LPG gas cylinder that is filled with the LPG gas, it is also an example of gas. Okay, similarly we will be looking forward to study different states in individual. Okay, in this particular lecture we will be studying the solid state. Okay, the solid state is the state in which matter is having a definite shape, distinct boundaries, fixed volume. फिक्स्ड वॉल्यूम होगा तो मतलब नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी. इट विल हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेस उसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है पेन, बुक, नीडल, बुक, वुडन स्टिक, नीडल, बुक एंड पेन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स. नेक्स्ट इज second point. Solids have the tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Okay, when the solids are subjected to outside forces. Okay, if we subject duster please, if we subject a solid with some force, suppose this is a solid, if we subject it with a force, I am subjecting this duster with a force. Look at it. Did the shape of the duster change? No. Why? Because it has the tendency, solids have the tendency to maintain the shape when they are subjected to outside force. बाहर का कोई भी फोर्स उसके ऊपर लगता है तो सॉलिड्स के पास ये टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप चेंज करने से रोक लेते हैं. ओके, third point is solids may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. Okay, अब बात ये आती है कि ये rigidity कहाँ से रही है? Why this is so solids are so rigid होते हैं. उनको हम अगर ब्रेक फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाने पे हो सकता है कि वो क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए, मतलब वो टूट सकते हैं. ओके, solids may break under the force but it is difficult to change their shape. उनकी शेप चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है ना. so they are rigid. इनको इसीलिए कहते हैं ऐसे solids को हम क्या कहेंगे जिनकी शेप चेंज करना मुश्किल होता है, उनको हम क्या कहेंगे, rigid solids. ओके, तो यहाँ पर आपको ये मैंने डायग्राम दिखा रखा है. अगर हम एक सॉलिड लें, इफ वी टेक अ सॉलिड, मान लीजिए दिस इज अ pen, you are writing from it
Okay, I am taking a small microscopic view of this, a part of this pen. I am taking this microscopic view part of this pen. If we will see under the microscopic vision of this pen particles, we will be seeing the particles of this pen are arranged in this manner. They are very closely packed and there is very less space between them. One particle cannot move freely. ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये पार्टिकल जो यहाँ पे ये बैठा हुआ है, इसको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन या बस में कभी जब बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो क्या होता है, यू कैन नॉट मूव फ्रॉम वन डोर टू अनदर, ओके ना। मतलब आप जहाँ पे खड़े हैं तो आपको अगर उतरना भी है तो यू हैव टू स्ट्रगल, ओके, यू हैव टू स्ट्रगल टू गेट टू द डोर ऑफ द बस और ट्रेन. So it is the similar situation here. These particles of matter are crowded, okay, yeah, they are crowded with the other particles. So ऐसा होने, but they are arranged in a definite fixed manner, okay. यहाँ पर crowd का मतलब है ये unarranged होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, they are fixed, they are in a definite, arranged in a definite manner, okay. ये कैसे भी रैंडमली अरेंज नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये फिक्स्ड डेफिनेट मैनर में अरेंज होते हैं. अब यहाँ पर इसका मूवमेंट इसलिए क्योंकि ये चारों तरफ से अपने किसी न किसी पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसका मूवमेंट फ्री नहीं है. इसीलिए जब एक पार्टिकल ऐसे ही सारे पार्टिकल्स का मूवमेंट भी क्या है, फ्री नहीं है, तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा. इसीलिए दैट्स व्हाई सॉलिड्स have the tendency to maintain their shape, okay. And similarly when the force is applied they suddenly break. अगर इनकी शेप जब चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं रिजिड सॉलिड्स, ओके. अब एक एग्जांपल आता है, सपोज रबर की बात करें, सर रबर, सॉल्ट एंड शुगर एंड स्पॉन्ज, ओके. यहाँ पर तीन चीजें हम बात करेंगे, रबर की, सॉल्ट एंड शुगर की एंड स्पॉन्ज की. आपने रबर देखा होगा, रबर बैंड ऐसे जब लूज होता है, इट लुक्स लाइक दिस, एंड व्हेन यू स्ट्रेच इट, आप दोनों तरफ से उसको स्ट्रेच करते हैं, तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, इट चेंजेस इट्स शेप. आपने तो कहा सर सॉलिड्स शेप चेंज नहीं करते हैं, रबर क्या सॉलिड नहीं है? इज द रबर नॉट अ सॉलिड? सो आई विल से द आंसर इज रबर इज अ solid, okay, but for a fixed amount of force, एक fixed amount of force के लिए fixed force, ठीक है ना, उसके लिए रबर अपना शेप चेंज कर सकता है. इट हैज द कैपेबिलिटी, रबर इज मेड सो, है ना, उसको बनाया ही इसीलिए जाता है कि उसका अंदर जो फिक्स फोर्स है वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके और अपनी शेप थोड़ा सा चेंज कर सके, ठीक है, उसको बनाया ही इसीलिए जाता है. देन आफ्टर इफ द फोर्स इज इंक्रीज्ड, अगर फोर्स को क्या करेंगे हम, इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा उसकी, इट में ब्रेक. आपने देखा होगा, आप रबर बैंड को ज्यादा खींच देते हैं तो क्या हो जाता है, वो टूट जाती है, रबर टूट जाती है ना. आपने ये चीज ऑब्जर्व की है. बट अगर आपने फोर्स लगाया, आपने ज्यादा फोर्स नहीं लगाया, फिक्स फोर्स के अंदर ही है वो, ठीक है ना, तो आपने जब फोर्स छोड़ दिया तो क्या होगा, वो अपनी शेप वापस गेन कर लेती है, वैसी की वैसी हो जाती है. तो ये नेचर है रबर का, बट इट इज अ सॉलिड, ओके. इट इज नॉट अदर स्टेट, इट इज सॉलिड. द नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्ट एंड शुगर. अब क्वेश्चन ये आता है, सर सॉल्ट एंड शुगर को अगर हम, एक कंटेनर है, कुछ इस तरीके की शेप है इसका, हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, एक दूसरा कंटेनर है, हमने इसमें डाल दिया. मान लीजिए सॉल्ट डाला हमने, शुगर को अभी नहीं ले रहे हैं, सॉल्ट डाला और यहाँ पर भी सॉल्ट डाला. अब मुझे बताइए, दोनों का शेप अलग अलग है, अलग अलग है, दोनों की बाउंड्रीज अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, तो मुझे बताइए क्या ये सॉलिड नहीं होगा? क्योंकि हमने क्या कहा है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप
एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट बाउंड्रीज ऑल्सो। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? तो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे सर, चीनी और नमक दोनों ही क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स से मिलके बनते हैं। किससे बनते हैं? छोटे छोटे क्रिस्टल्स से मिलके बनते हैं। तो जो एक इंडिविजुअल क्रिस्टल है, इंडिविजुअल क्रिस्टल, उसका शेप, उसकी शेप, उसका वॉल्यूम एंड उसकी बाउंड्रीज क्या चेंज हो रही हैं? क्या इसमें डालने से चेंज हो जाएगी? क्या इसमें डालने से चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। सो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, ये भी सॉलिड्स ही हैं। दे आर ऑल्सो सॉलिड्स। कंटेनर डिसाइड नहीं करेगा कि वो कोई मैटर क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है ना, या गैस है। अब ये चीज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिक्विड्स में कि कंटेनर की वजह से क्या होगा, उसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर वो चीज अफेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन सॉलिड्स के केस में ऐसा नहीं है। सॉलिड्स अगर क्या कहते हैं, इट इज एग्रीगेटेड, है ना, इट इज एग्रीगेटेड जस्ट लाइक दिस सॉल्ट एंड दिस शुगर। तो यहाँ पर अगर सॉल्ट और शुगर की बात करें तो इनका इंडिविजुअल क्रिस्टल क्या है, इंडिविजुअल क्रिस्टल का शेप, वॉल्यूम एंड बाउंड्रीज आर सेम एंड डेफिनेट, फिक्स्ड। अब आते हैं स्पंज की बात करें। स्पंज एक आपने देखा होगा, स्पंज क्या होता है, गद्दीदार होता है, ठीक है ना, उसमें के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स भी होते हैं। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी स्पंज को दबा देते हैं तो वो दब जाता है, उसकी क्या होती है, उसका शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, इसकी बाउंड्रीज भी चेंज हो रही है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? बट हम कह सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन ये है कि इसके अंदर जो होल्स हैं, छोटे छोटे टाइनी होल्स हैं, उसके अंदर क्या भरी हुई है, व्हाट इज देयर, देयर इज एयर। देयर इज एयर whenever we push or whenever we compress the sponge, क्या होगा, एयर विल एक्सपेल, हवा बाहर निकल जाएगी। हवा बाहर निकली तो हम क्या कर पाएंगे, उसको कंप्रेस कर पाएंगे, और जैसे ही कंप्रेस कर पाएंगे उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इंडिविजुअली जो पार्टिकल है स्पंज के, वो क्या है, सॉलिड्स ही हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, स्पंज के ऑल ओवर जो बल्क में एयर भी भरी हुई है, कहीं कहीं छोटे छोटे होल्स हैं, उसमें एयर है। वो क्या, जब हम कंप्रेस करते हैं तो एयर बाहर आ जाती है, तो हम शेप उसका चेंज कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे ये 3 एग्जांपल्स हैं जो आपको मैंने बताने थे, और यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछें, ठीक है ना। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको लिख लेनी है, और इन्हीं के बेसिस पे आपको जज करना है कि समथिंग इज सॉलिड और नॉट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट्स। नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट्स, है ना। थैंक यू सो मच।